Okay. Now see, this is the file which we shared yesterday also. So now today we are going to cover these ref lookup functions. Okay, so lookup starts with match, lookup, h lookup, v lookup, index, match. Then in the reference you have address, choose, index, indirect, offset, and index. Okay. Now let us understand what all these functions does. ये function क्या काम करते हैं पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद एक एक को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ठीक है. So first 15-20 minutes I'll spend on letting you understand what the function does और उसके बाद हम आगे काम करेंगे. ठीक है. चलिए let us start. So first function is match. Okay, so I'm going to this sheet which has this lookup. So match क्या करता है? Returns the relative position of an item in an array that matches a specified value in the specified order. तो ये मैच फंक्शन क्या करेगा कि आपके पास जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस में से वैल्यू ढूंढेगा और वैल्यू ढूंढ के आपको उसकी रिलेटिव पोजीशन बता देगा. ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल आई विल राइट सम डेटा ओवर हियर. सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ आलोक, यहाँ मैं लिखता हूँ सीटी और यहाँ मैं लिखता हूँ सीए. ठीक है. ये मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, आलोक, सिटी और सीए. अब मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ आलोक. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैच का फॉर्मूला लगाएं. ठीक है. विल पुट द मैच फॉर्मूला. सो मैच क्या करेगा, returns the relative position of an item in an array that matches a specified value in a specified order. Now I'm putting match का फॉर्मूला. ओपन करेंगे ब्रैकेट को. अब सबसे पहला पैरामीटर क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लुकअप वैल्यू? जो अपने को कंपेयर करना है, जो हमें कंपेयर करना है, जो हमें ढूंढना है. ठीक है. सो जो हमें ढूंढना है वो लुकअप वैल्यू होगी. अब मैं किसको ढूंढना चाहता हूँ, आलोक. आलोक. ठीक है. आलोक इज हियर, तो दिस बिकम्स माय लुकअप वैल्यू i5. ये जो आलोक लिखा था वो हमारी लुकअप वैल्यू है. अब हम लगाएंगे कॉमा. उसके बाद है लुकअप एरे. लुकअप एरे का मतलब क्या है कि कहाँ ढूंढना है. ठीक है. कौन से रेंज से ढूंढना है? इन तीनों में, इन तीनों सेल के अंदर ढूंढना है कि आलोक किधर है. ठीक है. कॉमा. उसके बाद क्या पूछ रहा है, मैच टाइप. अभी मैच टाइप में 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, 1 लेस देन, 0 एग्जैक्ट मैच, 1 ग्रेटर देन. ओके. सो व्हाट शुड आई राइट, इट इज 1 0 एंड -1. सॉरी, 0. Why 0? Because we wanted exact match. ना हमें एक कम चाहिए ना हमें एक ज्यादा चाहिए, तो हमें exact match चाहिए. ठीक है. Now you tell me what should be the answer. Enter key press करने से पहले पूछ रहा हूँ क्या आंसर आना चाहिए. आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा? आलोक. आलोक लिखा हुआ आएगा कि कुछ और आएगा? H6. H6. ओके. रेफरेंस दे. और will it Prema ma'am, would you like to answer what should come? H6 only, sir. H6 should come. Okay. तो H6 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि H6 के अंदर आलोक लिखा हुआ है. ठीक है. चलिए let's see what comes. What has come? 1. Okay, now let us understand why 1 has come and why not H6 has come. Okay. Now I will increase the font size of this because I think you have not read it properly, and I will change the color also. Now it has become red color. Okay. Now read it. I'm reading it with you. Returns the relative position. Okay. Returns the relative position of an item in an array that matches the specified value in the specified order. तो यहाँ पे important word क्या है? Important word क्या है? What is the important word here? Relative position. Okay. Now it is not showing, it is not telling the cell address. ठीक है. इसको भी हम zoom कर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं font size में. और यहाँ जो मैंने लिखा है इसको भी मैं बड़ा कर दूँ. ठीक है. So I will increase the font size of all. Now people have joined now, so I'm just repeating what I did. So I have written Alok City CA in the 3 cells. Okay. इन अलग अलग 3 सेल में मैंने लिखा है आलोक सिटी सीए और यहाँ मैंने लिखा है आलोक. ठीक है.
हम करना क्या चाह रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैच फंक्शन. What we are studying match function. What does match function do? Match functions returns the relative position of an item in an array that matches a specified value in the specified order. तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ आलोक लिखा है, आलोक इन तीनों में से पहले कॉलम पहले रो में है, पहला दूसरा तीसरा. अगर मैं इनको नंबर करूं 1 2 3, तो आलोक कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट. फर्स्ट. यहाँ हमने आलोक लिखा है. अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैच का, MATCH, मैच. मैच का मतलब क्या होता है, मैच करना. ठीक है, अब किसको किससे मैच करना चाहते हैं. ठीक है, तो जो हमारा मैच का फॉर्मूला है उसमें सबसे पहला पूछता है वो लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैल्यू आप ढूंढना चाह रहे हैं. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, द वैल्यू व्हिच यू वांट टू लुक फॉर. तो व्हाट वी वांट टू सर्च, व्हाट यू वांट टू लुक फॉर, यू वांट टू लुक फॉर आलोक. ठीक है, जो कहाँ है, बताइए कहाँ है, कौन से सेल में है, I5. ठीक है, I5 में है. तो मैं यहाँ पे करूंगा इज इक्वल्स टू, अच्छा और कौन सी रेंज में ढूंढना है, हमें कहाँ ढूंढना है, H6 6 से to H8 पे. ठीक है, आई विल पुट दिस इन अ येलो कलर बैकग्राउंड. सो नाउ एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली विजिबल. और ये जो हमें ढूंढना है इसका कलर हम रख देते हैं ये. ठीक है, चलिए नाउ आई वांट टू सर्च आलोक इन दीज 3 सेल्स. ठीक है, so what we will do is we will type this formula match, MATCH, match. अब मैच किसको करना है, I6 को. I6 में कौन लिखा है, क्या लिखा है, I5 सॉरी, I5. I5 में क्या लिखा था, आलोक. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ लुकअप वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे वेयर आई वांट टू सर्च H6 to H8. 8. ओके, एंड देन द लास्ट थिंग इज मैच टाइप. मतलब कि कैसे मैच होना चाहिए. तो देयर आर 3 ऑप्शंस, लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन. क्या चाहिए हमें, 0. 0, एग्जैक्ट मैच. एंड आई प्रेस द एंटर की. ठीक है, नाउ आई एम रीडिंग अगेन व्हाट मैच फंक्शन डज. मैच फंक्शन क्या करता है, फिर से बता रहा हूँ. रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन द एरे दैट मैचेस द स्पेसिफाइड वैल्यू इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर. मतलब ये एक रिलेटिव पोजीशन देता है. रिलेटिव पोजीशन का मतलब कि जो भी आपका एरे है, मतलब जो भी रेंज है, उस रेंज में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, कौन से नंबर पे आपका डेटा है जो आप ढूंढ रहे हैं. ठीक है, अब एंटर मारते हैं और देखिए क्या आ गया, एवरीवन 1. क्या आया है. 1. नाउ सपोज आई राइट CA ओवर हियर, CA, व्हाट शुड कम एज द आंसर. 3. 3. Only one person is giving the answer. Everyone in the chat box, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या आएगा जल्दी से. You have to- There are 20 people sitting in the class, 20 people attending this meeting. Everyone, I want the answer. 3. Everyone is saying 3. चलिए ठीक है. Let us see if we get 3 or not. तो CA लिखा और ये कर दिया है एंटर. और सही जवाब आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है. ठीक है, the answer is right, absolutely right. Now suppose I write CS, what do I get, tell me. CS लिखा है मैंने अभी, एंटर नहीं दबाया, क्या आएगा, what should come as an answer now. NA, very good अंजलि, NA. बस सिर्फ NA लिखा हुआ आएगा या और कुछ भी आएगा NA के साथ में, tell me, come on. NA, only NA will come or something else will come, don't know. Only NA, no. NA hash, or whether it is hash NA. NA hash or hash NA. Hash and Hash. NA. Hash means error. So enter मारेंगे और ये 2 हैश आ गए. ये क्या हुआ, NA आने वाला था ना, डबल हैश कैसे आ गए. तो छोटी है शायद इसमें. हाँ करेक्ट,
विड्थ छोटी है, विड्थ को बड़ा कर दिया हमने। कौन सा शॉर्टकट कीज बताइए, चलो टेल मी व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ अ सेल? वी डिड शॉर्टकट कीज। Alt H E O. No, alt H O, not P. It is I. I. Yes, correct. I think typing error. Yes, I. Alt H O I. Very good. तो फिर से एक बार करके बताते हैं जो लोग को नहीं पता है। ये डबल, ये छोटा था बिट इसलिए आया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको #NA, ठीक है। Alt H, आई कम टू द होम टैब, ओ फॉर्मेट में चले गए और आई से क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये CS को ढूंढ रहा है इन तीनों में और CS इसको मिला नहीं तो बोल दिया NA, ठीक है। अब एक और चीज सिखाता हूँ नहीं आपको, आप चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा वर्ड हम ऊपर लिखे हो जो यहाँ नहीं हो, ठीक है, तो NA ना आए, NA की जगह है नॉट फाउंड। क्या है? Not found. नॉट फाउंड। अब ये कैसे होगा, बताइए कैसे होगा? Format cell. फॉर्मेट सेल नहीं, इज एरर। वेरी गुड, इज एरर। नो, इज एरर विल गिव यू एन आंसर। चलिए, हमने कल पढ़ा था, आज उसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो इस फंक्शन में हमने पढ़ा था इज एरर, और आज मैंने कॉलेज में ही पढ़ाया था, जो लोग कॉलेज से जुड़े हैं उनको भी पढ़ाया था इज एरर। इज एरर क्या करता है, बताता है कि एरर है या नहीं है, ठीक है। तो हम वापस से अपनी इस जगह पे आते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं इज एरर। इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, यही वाला पॉइंट इधर कॉपी करना है, फॉन्ट साइज, तो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द की आई शुड प्रेस, व्हाट फंक्शन आई शुड यूज? Format printer. Format cell. फॉर्मेट प्रिंटर। वेरी गुड। इज इक्वल्स टू इज एरर। क्या ये एरर है? हाँ, ये एरर है। लेकिन लेकिन एक और बात, अगर यहाँ पे इज ERR लिखा होता तो क्या होता? ये बोलता फॉल्स, ये बोलता फॉल्स। क्यों? क्योंकि when you say is error, then NA is included in is error. Remember you asked this question yesterday, do you remember? Yes, sir. So here is the answer today. Can you repeat, sir? Is error and error. Hmm. Okay, but I did not ask this question. What I asked is what we wanted कि NA की जगह पे क्या लिखा हुआ है? Not found. Not found. अब ये कैसे होगा? Alt H O कैसे होगा? Just concentrate everyone here. हमने मैच फंक्शन लगाया था, मैच फंक्शन से हमें उसकी रिलेटिव इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे CA लिखता तो आंसर हो जाता 3, लेकिन मैंने लिखा CS तो आंसर आ रहा है NA। इस आंसर में NA की जगह मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, एक नया फॉर्मूला लगाएंगे, उसका नाम है इफ एरर। क्या नाम है? If. इफ एरर। अब इफ एरर का मतलब क्या होता है कि अगर एरर आए तो क्या करें? अगर एरर आए तो क्या करें? व्हाट शुड वी डू इफ वी गेट एन एरर? ओके, सो व्हाट यू विल डू इज you will write if error, open the bracket, put If everything comma not found. okay, put everything inside this, मतलब जो आपने फॉर्मूला लिखा है मैच का वो if error के अंदर लिख दिया हमने, कॉमा लगाया और बोल देंगे not found, give me not found and close the bracket. Is it understandable? समझ में आ रहा है आपको? Yes. Yes, sir. No, you don't have to say yes, you have to write in the chat box understood. चलो everyone, जिसको भी समझ में आ गया है write down understood in the chat box. Come on, understood. If you have understood कि why we wrote if error और if error से क्या होगा, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाक से लिख दीजिए understood। और जिनको जोर आ रहा है लिखने में वो यू भी लिख देंगे तो चलेगा, यू का मतलब होता है understood। understood, very good। So थोड़ा बहुत be active in the class, ठीक है।
एंड दिस इज द ओनली वे व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखिए क्या आ गया, नॉट फाउंड। डिड वी गेट दिस नॉट फाउंड? ठीक है, do you want me to repeat it? If you want me to repeat, you can write down repeat. If Sir, anyone if wants there me are to repeat, there are more than one, then what will be the result? 1, 2, 3, that way? okay, very good question, very good question. So I will do this. No sir, okay fine, so everyone has understood, chaliye, very good. Now suppose I write CA over here and I've written in the small caps, और यहाँ पे CA कैसे लिखा हुआ है, बड़ा। तो एक चीज ये भी हो गई कि यहाँ पर हमने क्या दिया था, एग्जैक्ट मैच, फिर भी उसने मैच कर दिया, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, इट इज नॉट केस नहीं। सेंसिटिव, राइट। नाउ सपोज आई रीड CA over here also. Now what answer we have got? What answer we have got? 1. 1. But CA is here and here both, इसको भी ऐसे लिख देते छोटे में, तो भी आंसर क्या आ रहा है, 1, yeah. 1 आ रहा है, ठीक है। Now I'll do one thing, I remove this 0, अभी भी आंसर क्या है, 1 है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, यहां पर लगाते हैं हम 1, अभी भी आंसर 1 ही है, ठीक है, अभी भी आंसर 1 ही है। अब मैं इसको करता हूँ -1, अभी भी आंसर 1 ही है, ठीक है। नाउ लेट मी डू सम चेंजेस इन द डेटा सेट। यहाँ लिखा है मैंने CA, यहाँ लिखा है CA, अब मैं इसको करता हूँ CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली। बिल्ली। चलिए, सो यहाँ पे CA है और यहाँ पे कैट है, तो आंसर क्या आ गया, 3। हेलो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज इट इज एन एग्जैक्ट मैच। CA यहाँ भी है, CA यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे T भी है, तो कैट हो गया। और यहाँ पे भी मैं अगर T लगा देता हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, 1. 1। But the problem is, if we have two things in common, then we will not get the right answer. We'll get only one answer. That is the first value which appears in the list. पहली बार जो आ रहा होगा वो ही दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, अभी इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। We will make it more interesting now. अभी एक काम करेंगे, यहाँ जो फॉर्मूला लगाया था इसमें हम कर देते हैं 0 की जगह -1। -1 क्या होता है, ग्रेटर देन, ठीक है। अभी देखो व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ लिखा है CA और यहाँ लिखा है कैट। क्या CA और कैट एक ही है? इज CA इक्वल टू कैट? No. यू कैन नॉट कॉल अ CA a cat, कम ऑन। No. No. नो, देखो ये एक्सेल भी बोल रहा है फॉल्स। एक्सेल से पूछा मैंने कि क्या CA कैट है, तो बोल रहा है फॉल्स। और यहाँ पे कैट लिख दें तो ये बोलेगा ट्रू, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। अभी यहाँ पे कैट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी कैट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नॉट फाउंड क्यों आ रहा है? Why it is not found? It should be 3 ना in the answer. -1 लिखा है इसीलिए। -1 लिखा है इसके लिए, चलिए इसको 1 कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको 1 कर देते हैं। अभी क्या आंसर आ गया, 1. 1 आ गया, ऐसा क्यों? Now what I'm trying to explain is कि यहाँ पे इसका रेलिवेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, -1, 1 एंड 0, उसका मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। बिकॉज एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा या जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम करते हैं तो कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि मान लीजिए किसी का नाम सेम है, आलोक ALOK और AA LOK, ऐसा भी लोग लिखते हैं कई बार, ठीक है। सीता STTA SITA, सीता बोलने में सीता है लेकिन STTA और SITA, तो इफ यू डोंट गिव एनीथिंग तो भी 1 आ रहा है। और यहाँ पे आप 0 लगाते हैं तो 3 आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लगाता हूँ
और मैं यहाँ पे -1 लगाता हूँ तो क्या आ रहा है, नॉट फाउंड। ठीक है, और मैं -1 की जगह क्या लगाता हूँ, 1, तो क्या आ रहा है, 1। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 100, यहाँ मैं लिखता हूँ 10, यहाँ मैं लिखता हूँ 100, यहाँ मैं लिखता हूँ 1000। नाउ यू विल गेट अ परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। अगेन आई एम पुटिंग द फॉर्मूला, इफ सॉरी मैच व्हाट यू वांट टू मैच, h5 comma, and where is the data set, sorry i5 it was, i5 को मैच करना है और h6 से लेके h8 तक की। ठीक है, और हम देते हैं 0 एग्जैक्ट मैच। तो क्या आंसर आया, 2। 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दिस 100 इज इक्वल्स टू दिस 100। आंसर इज ट्रू। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आई विल डू वन चेंज, इंस्टेड ऑफ 0 आई विल पुट -1 और आई विल पुट 1। नाउ सी व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर नाउ, सेम 2। नाउ आई विल पुट -1, व्हाट इज द आंसर नाउ, NA। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ रहा है क्या? यस, ओके, सो दिस इज व्हाट मैच डज। ठीक है, मैच क्या करता है, आपको रिलेटिव पोजीशन देता है जो भी नंबर लिखा होता है। बट why this is happening, why this is happening that you understand? Okay, चलिए let me give you one more example। यहाँ पे हम लिखते हैं 99। ठीक है, एंड यहाँ मैं लिखता हूँ -1, तो 100 आया। अब मैं लिखता हूँ -1, NA आ गया। ठीक है, एंड लेट मी पुट 0, तो 2 आ गया। ठीक है, और लेट मी राइट डाउन 101 एंड लेट मी राइट डाउन 1 ओवर हियर, तो 2 आया। लेट मी राइट डाउन -1 ओवर हियर, 2 आया। ठीक है, and let me put 0, it will give you same answer, 2। Now what does it mean? It means that, देखिए, लेस देन का मतलब क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर ढूंढने हैं उससे अगर एक कम भी होगा तो भी वो आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल ऐसा वैसा आएगा, और ग्रेटर देन का मतलब उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, सो दिस इज इट, बट इट इज नॉट कॉमनली यूज। जनरली क्या होगा, आपको 0 ही करना पड़ेगा एग्जैक्ट मैच के लिए। तो बस उतना ही ध्यान रख लो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बिकॉज यू हैव आस्क्ड, सो लेट मी क्लैरिफाई, लेट अस रीड समथिंग। क्या बोल रहा है ये, 1 और ओमिटेड 0 और -1। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या है और -1 का मतलब क्या है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। सो मैच फंक्शन finds the largest value that is less than or equal to lookup value. That value in the lookup array argument must be placed in the ascending order. Okay, for sorry, in the ascending order. For example, -2 1 0 1 2 e to z false true। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 लिखते हैं तो क्या मैच क्या करेगा, फाइंड्स द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पे हम लिखते हैं 5। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं -5, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ मैं लिखता हूँ 5। अभी आंसर क्या आया, इसको हम करते हैं 1। अभी आंसर क्या है, 3। ठीक है, क्योंकि इसने एग्जैक्ट मैच कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ 15। तो व्हाट आई हैव गिवन इज, आई हैव गिवन -1 1 -5 1 एंड 15। अभी आंसर देखो क्या आया है यहाँ पे, अभी आंसर आया है 2, दैट इज 1। ठीक है, अब इसको मैं वापस पढ़ता हूँ एक्सप्लेनेशन को, शायद आपको समझ में आ जाए। मैच फंक्शन फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू द लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, 5।
5 है। अब 5 से ऐसा कौन सा छोटा वैल्यू है जो 5 के नजदीक है? तो पहले 5 ढूंढेगा, फिर 4 ढूंढेगा, फिर 3 ढूंढेगा। एग्जैक्टली अब यहाँ पे 4 लिखते हैं तो देखो आंसर क्या आया, 3 आया। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे हमने 4 लिखा, इसको 3 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 4, अभी आंसर क्या हो गया? 1। 1 होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। Now the answer has become 2. एग्जैक्ट हुआ इसी। एग्जैक्ट हो गया इसलिए, तो एग्जैक्ट होगा तो एग्जैक्ट आंसर दे देगा, अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो फिर क्या देगा? तो वो आंसर देगा जो उसके नियरेस्ट होगा। ठीक है, तो 5 के नियर तो क्या है, 4 है, तो आंसर 3 आना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 1। नहीं बट सर वो आपने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा, करेक्ट। तो अभी मैं असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ उसको, 4 और 10, तो -5, 4 and 10। नाउ व्हाट इज द आंसर? 2, that is 4. Are you getting? Are you So getting? data first of all, data is required to be arranged in ascending order, and then Exactly. hence First, you have to arrange the data. Suppose let me take one more example. Let me take one more example. यहाँ मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, ठीक है, और यहाँ पे I'll put 8। तो क्या आंसर आया? 3 3 आया। मतलब रिवर्स में जो पहला मिलता है वो रिजल्ट देता है। बस वही रिजल्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 2, क्योंकि बराबर है। अगर मैं लिखता हूँ 3 तो आंसर क्या आएगा? 1। तो जो लुकअप वैल्यू है, और अगर आपने लास्ट में 1 लगा रखा है तो उसके रिवर्स में उस नंबर से रिवर्स चलेंगे तो जो नंबर पहला आएगा वो पोजीशन ले लेगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 9 तो क्या आंसर आना चाहिए? 6 6, 3 नंबर, क्योंकि तीसरी पोजीशन में 6 लिखा है। अब एक काम करते हैं, इसको उल्टा अरेंज करते हैं, 6, 4, 2। अभी ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा, तो आपको डेटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, तो 5 के पास में कौन है? 4, तो इसने आंसर दे दिया 2। बट ये कब हो रहा है? जब हमने क्या लगाया है फॉर्मूले में, लास्ट में 1। अगर 1 की जगह 0 होता तो फिर ये क्या देता? एन ए दे दिया इसने, क्यों? क्योंकि 5 नहीं है सीरीज में। आर यू गेटिंग? यस। और तीसरा जो है वो क्या बोलता है? finds the smallest value that is greater than or equal to lookup value. The value in the lookup array must be placed in the descending order. So exact opposite of 1. Exact opposite of 1. Exact opposite of 1. तो यहाँ मैं इसको डिसेंडिंग में कर देता हूँ, 8 कर दिया, 6 कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, और हम 5 ढूंढना चाहते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे -1। So you get 6 as the answer. तो 1 में हम क्या ढूंढ रहे थे? लोएस्ट वैल्यू which is nearest to the number, और -1 में हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू which is nearest to the number, और नेक्स्ट नंबर बेसिकली। ठीक है, सपोज आई राइट 7, तो आंसर विल कम 1 बिकॉज 8 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? Yes. Okay, great. You can write down understand for my satisfaction, everyone, if you have Please understood this repeat math. the last one which you said. What? The last one which you said. I didn't get that -1. Okay, I will show you. See, -1 basically what it is doing is, first of all, you have to arrange the data in the descending order. So descending order means that the largest number should come first, then the next number, then the next number. तो यहाँ पे हमने लिखा है 8, 6, 4. This is descending order. Okay. Now what I am looking for? I am looking for 7. So it says that it will give you the smallest value that is greater than or equal to the lookup value. Okay, so -1, if you say, it will say matches the smallest value that is greater than or equal to the lookup value. The value in the lookup must be placed in the descending order.
For example, true, false, Z28, 210, and so on and so forth. Okay. So here what we have written is 7. Now, what is the smallest value as compared to 7 in this series? Sorry, greater value. Greater value is Greater more than value. 7. Greater Eight. value is 8. So it has given 1 as answer. Okay. Okay. Suppose I replace 7 by 3. Now, what is the greatest value? What is the higher value than 3 in this series? 4. 4, 6, 8, all. So it has given the third position. Okay. Okay, so this is how match works. Okay. Now, Okay, why sir. it is used? Why we are learning? What is the use of this match? Okay. So suppose in this, there is a case over here. They are saying product. There are 4 products: apple, orange, banana, and pear. Okay, there are 4 products: apple, banana, orange, and pears. Count 1 ascending, count 2 is descending, and count 3 there is no order. Okay. You will understand the match formula with this example. So पहले में ascending है, that means 35, 38, 40, 45. Then you have descending, that is 45, 40, 38, and 35. The number are same in the first 2 columns, and in the third one it is 25, 30, 28, and 15. That means this is ascending and this is descending. मतलब both the order is there. Correct? समझा सबको ये इतना? Yes, sir. Yes. Okay, fine. Now see the result. So what we will do is we will hide these columns so that the result comes here. So I will hide this column and I'm doing it. Okay. Now, first we need to understand what formula is put. So understand this. Okay, and I will shift it towards the left so that you can see the values also. So let me just shift it. Okay. Now concentrate on the screen, everyone, and then let me just increase the font size so you can see it properly. Okay, now F2. So now see, match 41. What is 41 now? What is 41? Lookup value. लुकअप वैल्यू मतलब ये टाइप किया है, अभी कहीं से लिखा नहीं है, अभी कहीं से रेफरेंस नहीं दिया किसी सेल का, टाइप किया है कि हमें 41 ढूंढना है. कहाँ ढूंढना है? C11 से लेके C14 पे. व्हाट इज C11? 35. व्हाट इज C14? 45. तो इस रेंज में we have to find 41. Now tell me, is there any 41 available in the list? No. No, there is no 41 here. But you have put 1, not 0. हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 1. We have put 1 and not 0. So what should it give as an answer? Tell me. 340. 340. Now why it will give 3? Because whenever you write the number in ascending order and whenever you give 1, it will give you the number which is lesser than the number you are looking for. Nearest lesser. Nearest lesser number. Nearest lesser number. तो 41 ढूंढ रहे हैं, उसके नियरेस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 40. तो 40 का आंसर दे देगा, तो आंसर होना चाहिए 3 और आ गया है 3. Now you are free. Got it? If you Yes. got it, Yes, you sir. can write Yes. down got it, or you can write down clear. Got it लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया चैट बॉक्स में, सब लोग got it लिख दें, clear और got it. If you got it. Got it. Got it. Fine. Now we come to the next one. Okay, now we come to the next one. And what is the formula for next? So match 41, same formula, but instead of 1, there is a 0 now. So what does 0 represent? Exact match. Exact match. match. Matlab you want to find out whether is there any 41 in this number? Yes or no? Tell me. No. इन सब नंबर में कहीं भी आपको 41 नजर आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं आ रहा. No. आई होप यू ऑल्सो नॉट गेट. ठीक है, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा. ठीक है, अभी क्या काम करेंगे? अभी व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट पुट एन एंटर ओवर हियर एंड वी विल सी द रिजल्ट. तो ये रिजल्ट क्या आना चाहिए? NA, बिकॉज देयर इज नो सच नंबर. तो NA आ गया. ठीक है, नेक्स्ट F2.
Again the same formula, match 41 C1 C11 to C14, and now the answer is -1. Will it work guys? -1 के लिए क्या होना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज Descending होना order. चाहिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, सो आंसर क्या आएगा? Na आगे. And again, I hope you will get the logic now. ठीक है, next one, F2. Now again they are looking for 41 in the same series, or the series is different now? Different. Different. D range. Earlier we were looking at C11 to C14, मतलब वो ascending वाले सीरीज में ढूंढ रहे थे, अभी डिसेंडिंग में आ गए, और अभी क्या लिखा है? -1. Now will it 41 work? से higher. Will it work? Nearest. Nearest highest number it will be. Yes. So what is the nearest highest number to Nearest 41? higher. Write down the answer in the chat box. What is the nearest highest number in the chat box? In the cells. Answer in the chat box. Everyone, I want to see the answers. 45, 45, 45, 45. And you are absolutely right. Answer is 45, but it will not give you 45. It will give you the position of 45. 45 इन चारों नंबर में कौन सी पोजीशन पे खड़ा है? First. फर्स्ट. First. आंसर भी आ गया 1. ठीक है, आंसर आ गया 1. If you look for any video on YouTube on index and match, and you get this kind of explanation, send me that video link. ठीक है, अगर आप YouTube पूरा सर्च कर लें और आपको इंडेक्स मैच, द फंक्शंस दैट वी आर डूइंग इज इंडेक्स एंड मैच, अभी मैच कर रहे हैं फिर इंडेक्स आएगा, अगर आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ मिल जाए तो मुझे बता देना, मुझे भेज देना वो वीडियो. ठीक है, अगेन नेक्स्ट एंड द लास्ट वन. अभी क्या किया है? व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज 28. Is 28 available in the series last Yes. column? Yes. Yes. What is the position of the number 28? Third. Third. So what we should get as an answer? 3. 3. Why 3? Because in the Exact. end it is 0. Exact. Exact match है, तो 28 लिखा है और 28 दिख भी रहा है, तो एग्जैक्ट मैच होने के कारण आंसर मिल जाएगा, और आंसर क्या आएगा? 3. 3. आ गया. ठीक है, नाउ आई डोंट थिंक एनीवन शुड हैव एनी प्रॉब्लम हियर. अभी मैच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबका, बोलो है क्या? Yes, sir. Yes, perfect. So if match is clear, we can go to the next function in the series, that is lookup. Okay, now lookup is a very powerful function, very powerful. ठीक है, मतलब it is the most used function in Excel and it does most of the work in the easiest manner. ठीक है, अभी देखते हैं क्या करता है ये. तो बोल रहा है lookup. ठीक है, let me just bring it up so that match is out of your mind and out of your sight. So lookup looks for a value either from a one row or one column range or from an array provided for backward compatibility. नहीं, ये अंग्रेजी है, इसके अंदर क्या लिखा है अंग्रेजी में, हिंदी में बता देता हूँ. Looks for a value either from a one row or one column range. मतलब एक वैल्यू को ढूंढेगा एक कॉलम में से या एक रो में से. ठीक है, रो कैसी होती है? रो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल. और कॉलम कैसे होता है? वर्टिकल. ठीक है, तो वो क्या करेगा, या तो एक रो में से एक वैल्यू ढूंढेगा, या एक रो में से वैल्यू ढूंढेगा, एक कॉलम में से वैल्यू ढूंढेगा. ठीक है, और फ्रॉम ए एरे. एरे का मतलब क्या होता है? Range. रेंज, मतलब कॉलम और रो का मिक्सचर. ठीक है, रेंज. फुल स्टॉप. प्रोवाइडेड फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, इसका मतलब कौन समझा है? प्रोवाइडेड फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है?
at par. एट पार। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबल मतलब कि अगर आप आईफोन है आपके पास में और आईफोन का चार्जर है तभी आपके वो फोन चार्ज होगा। अगर आप आईफोन में सी टाइप Complement. चार्जर लगाओगे तो लग जाएगा क्या? नहीं, नहीं लगेगा। इट इज नॉट कंपैटिबल। नाउ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पीछे से भी, मतलब जो हम ढूंढ रहे हैं रिजल्ट वो बैकवर्ड भी जाके ढूंढ के ला देगा वो। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट नंबर A1 A002 003 4 5 6, ये एक टेबल बनी हुई है और यहाँ पे सीरियल नंबर है 10 20 30 40 50 60। पार्ट का प्राइस है 200 500 300 एंड स्टेटस है इन स्टॉक इन स्टॉक इन स्टॉक। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर लर्निंग इज लुकअप। ठीक है, लुकअप मतलब हम इस एरे में से, इस टेबल में से कुछ तो भी ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, और वो जो ढूंढना चाहते हैं उसका रिजल्ट कहाँ आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिमार्क्स पढ़ लेते, पहले हम क्या ढूंढना चाहते हैं वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में क्या लिखा है, इज इक्वल टू लुकअप। लुकअप अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, सपोज यू आर वर्किंग इन अ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और वहां पे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं। अब आपको, आपके पास 100 स्पेयर पार्ट्स है। यू सेल अ प्रोडक्ट व्हिच हैज 100 वेराइटीज एंड ईच वेराइटी हैज अ डिफरेंट प्राइस। ठीक है, नाउ फ्रॉम दैट लिस्ट यू वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अगर आपको लिस्ट भी दे दी जाए तो आप क्या करेंगे उसको ढूंढने के लिए, बताइए क्या करेंगे। सपोज मैं बोलता हूँ A001 का प्राइस बताओ, तो आप झट से देख के बता दोगे 200 है। A006 का प्राइस बताओ, आप झट से बता देंगे 525 है क्योंकि दिख रहा है। लेकिन A100 का प्राइस पूछ दिया तो कैसे बताओगे? टेल मी। मैन्युअली सर्च करें। You will find for it, you will say control F, you will write down A100, enter, और फिर वो A100 के सामने उसका प्राइस आएगा, तब आप बताएंगे कि हाँ सर ये प्राइस होता है A100। ठीक है, what I will do is I will just add some more columns to, some more rows to it, and I will write down A100 also। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको 80 कर देते हैं, इसको 90 कर देते हैं, इसको 70 कर देते हैं, इसको I will do it 625 725 800। ठीक है, and I will do it, make it this 80 90 100। okay, now suppose this table is of 100 columns 100 rows। ठीक है, 100 रो का डेटा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ चलो A100 का प्राइस बताओ मुझे, तो आप करेंगे A100 एंटर। A100 सर 800 रुपीज। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा A90 का बताओ, A80 का बताओ, तो बार बार क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा बताइए? फाइंड करना। फाइंड करना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हम, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ जाए और बोले सर आप बार बार पूछते हैं, एक काम करिए आपको एक ड्रॉप डाउन बना के दे देते हैं, आप जो सेलेक्ट करेंगे उसका प्राइस उसके सामने दिख जाएगा। आप जो सेलेक्ट करेंगे उसका प्राइस उसके सामने ही दिख जाएगा। तो क्या ये सही रहेगा? यस सर। विल इट बी हेल्पफुल? यस सर। चलो लेट अस लर्न हाउ टू डू इट। कैसे होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ पार्ट नंबर और यहाँ पे क्या आना चाहिए उसका प्राइस। Now yesterday in yesterday's class we learned how to create a list। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखा था कल हमने। यस सर। कौन से मेन्यू में आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट? डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में, एंड डेटा वैलिडेशन इज देयर इन द डेटा टैब। सो यू गो टू डेटा टैब एंड गो टू डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में हम क्या सिलेक्ट करेंगे? लिस्ट। and in the list you will type the source। what is the source? B22 to B30। ठीक है, B22 to B30 और ओके कर देते हैं। यहाँ पे ये सही से आया नहीं, आई विल हैव टू सेलेक्ट इट अगेन। तो यहाँ पे हम काम करते हैं, वी विल गो टू डेटा वैलिडेशन अगेन, और यहाँ पर इस सोर्स को अभी सेलेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, एंड ओके। नाउ वेट, आई विल सेलेक्ट दिस फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, एंड इसे एंटर। अभी आप देखेंगे कि यू गेट अ ड्रॉप डाउन।
ठीक है, अब आप जो नंबर आप चाहेंगे वो नंबर का आपको मिल जाएगा। सपोज 100 का पूछा, 100 आ गया, ठीक है। बट दिस इज हाफ डन, आधा काम हुआ है अभी। क्यों? क्योंकि ड्रॉप डाउन तो बन गया, जो नंबर चाहिए उसका प्राइस भी तो चाहिए। नाउ हाउ डू वी गेट द प्राइस? टेल मी, हाउ डू यू गेट द प्राइस? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ लुकअप, ठीक है। नाउ व्हाट विल लुकअप डू? जस्ट लुक हियर, ठीक है, यहाँ देखिए लुकअप क्या करता है। सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ लुकअप नाउ इज इक्वल टू लुकअप। इट इज वेरी पावरफुल फॉर्मूला, लुकअप। इसका नाम लुकअप है लेकिन ये सब जगह देखता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह, ठीक है। व्हाट इज द लुकअप वैल्यू? व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? व्हाट शुड F, कम इन द लुकअप वैल्यू? F22. F22, that is A100. That is what we want to find out, okay, comma. Now look up vector. Vector का मतलब the area where you want to find out, the table which in which you want to find out this A100. कौन सा table है वो? ये B, ये So we will select the entire table, okay, or you can select the column also, but we have selected the entire table, okay. तो ये क्या बोल रहा है कि A100 को इस टेबल में ढूंढो, और अगर मिल जाए, कॉमा, अगर मिल जाए तो क्या चाहिए उससे? C, D, D22. D22 to D30. 30. That is the result. So I will write down D22 to D30. Now what is D22 to D30? Is the price. अगर Price. A100 इस टेबल में मिल जाए तो उसको ढूंढ के उसके सामने जो प्राइस लिखा है हमें वो ला दीजिए, और अब हम दबा देते हैं एंटर। तो क्या 800 ही प्राइस है उसका A100 का? Yes, sir. A100 का प्राइस 800 है। और इतना ही नहीं, जब हम इसको करेंगे A80 तो देखिए प्राइस क्या हो गया, अपने आप Change हो. चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ कर दिया A5, प्राइस क्या हो गया, चेंज हो गया। और क्या ये सही प्राइस आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। अब एक और चीज, अब हम एक और कमाल करके देखेंगे। सपोज दीज आइटम्स आर नॉट इन स्टॉक, ठीक है, जो हमने नीचे वाला आइटम लिखे उसके मैंने आगे लिख दिया नॉट इन स्टॉक, और इसको मेरे को पेस्ट करना है नीचे तक, तो आई विल सेलेक्ट एवरीथिंग एंड आई विल से कंट्रोल डी। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू सी कि दिस प्रोडक्ट इज इट इज इन स्टॉक और नॉट इन स्टॉक, ठीक है, स्टॉक में है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री मतलब कि ये स्टॉक में है या नहीं है। अब क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यू विल अप्लाई, सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई। तो ये सेम फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लुकअप, लुकअप G22। अभी G22 देखना है या वही देखना है F22? F22 ही ढूंढना है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट नंबर। Yes, sir. हाँ, यस, वैसे बी भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं ना, वो भी तो मतलब सेम ही आएगा। क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं ठीक है, ओके। वो नहीं कर अगर सकते ना, प्राइस कैन बी कोई सेम। वैल्यू, हाँ अगर कोई प्राइस मैच करके तो प्राइस मैच कर दिया तो दो कमोडिटी का एक जैसा प्राइस हो सकता है, ठीक है। या Yeah, so you cannot select, you will select the part number only. So F22 is the lookup value. We want to look up from C22 to E30, ठीक है। And if we find this serial number, or what we'll do is we will find in C column only, क्योंकि इधर ही तो लिखा, sorry, in the B column. So I will say B22 to B30, क्योंकि यही तो वो है। और अगर ये मिल जाए तो हमें क्या चाहिए, ई कॉलम से आंसर चाहिए कि स्टॉक में है या नहीं। नाउ आई विल से एंटर। सो A3 इज इन स्टॉक, A3 इज इन स्टॉक। नाउ आई सेलेक्ट A80, तो ये क्या बोल रहा है, Not in stock. नॉट इन स्टॉक। कितना इजी हो गया हमारा काम, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ व्हाट, Excel. Excel and lookup. लुकअप। Yes, but we have to explore.
जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपको मजा आएगा इसमें, जितना अंदर जाएंगे उतना मन करेगा और अंदर जाने। So this can be extended to any number of column. Yes, this can be extended to any number of columns. So suppose I insert some more columns over here. And maybe some other details are there like quantity or maybe anything you can put. Vendor or something, anything. maybe the supplier, whatever. ठीक है, तो भी देखो आंसर चेंज नहीं हो रहा है, हमारा क्वेश्चन वो का वही है। तो कितना भी कॉलम हो सकता है और उस कॉलम में हम उसका रेफरेंस अगर चेंज कर देंगे तो हमें क्वांटिटी भी दे देगा। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द क्वांटिटी, कितना स्टॉक में माल पड़ा है, ठीक है। तो आई विल जनरेट सम रैंडम नंबर हियर, रैंड बिटवीन, एंड सपोज 100 to 200 आई वांट टू जनरेट सम रैंडम नंबर just to give you an example. Okay, so these are some random number and I will copy it now. Control C, Alt S, V, B. Okay, and I'll put some supply name A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, now instead of price and inventory, I want to find out what is the quantity available and who is the supplier of this product. Okay, so what I have to do is instead of this H22 is right. Instead of this getting this F as a result, I want D as a result now. So D to D. So now you get 146. What is 146? 146 is the quantity of this A6 which is available. And you can change this A6 to A100. तो यहाँ पे 102 हो गया, तो इसका इतना क्वांटिटी अवेलेबल है। अब सप्लायर ढूंढना है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला हमें चेंज करना पड़ेगा। सप्लायर कौन से कॉलम में है? ई में। सो यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर में मैं लिख दूंगा ई। गिव मी द आंसर फ्रॉम दिस। सो दिस A100 is supplied by I supplier, and if I change to A6 it is supplied by F supplier. If I do A990 it is supplied by H. Sir, if we maintain the same columns, then all 4 inputs will be appearing. If we maintain the same number of columns in these also. So it will give exactly, yeah, it will give you the same result. Same. So you can copy all 4 parameters will be reflected. Exactly. So if you copy this and suppose I paste it in the new sheet, ठीक है, अभी मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट का काम है। Let me just change the view settings for this. See, this all looks very difficult, but it is not if you try once. हम try नहीं करते हैं, वही problem है बस हमारे साथ। लेकिन ये सब चीजें simple है। This is not at all difficult. The only difficulty is that we don't want to try or explore. ठीक है। Now I have copied this. Now what I will do is I will put the formula here. ये दूसरी शीट बनाई है नहीं, ठीक है, और इसको हम नाम दे सकते हैं क्वेरी शीट। And this is the main sheet यहाँ पे डेटा था, ठीक है। Now I want to find out everything: serial, quantity, supplier, part price, status, everything I want to find out, right? So what I will do is I will apply the formula look up. What you want to find out? This value, ठीक है, comma. Now where is the data? Where is the data now? Data is there in this column, in this lookup sheet. Data कहाँ है? Lookup sheet में है, और यहाँ है data. This is the data. Okay, so you selected data from this comma. Once you selected the data, then what it is asking for? Result vector. I want the serial number now. तो ये मैंने select कर लिया और close the bracket and here you go. ठीक है। You want to create a list here, so again you can create a list over here also. So home पे जाएंगे, home पे जाके data tab में जाएंगे, data validation. In the data validation you will select list. In the source you will go to lookup and you will select the source from here and you will say okay. So here is the list. You change this number, the number will change. Okay. Now you want quantity. Now what I will do is I will not type the formula every time. ठीक है, अब थोड़ा स्मार्ट वर्क का काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। तो आई वांट दिस B3 टू बी स्टैटिक, ये चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा बेस है।
तो इसको फ्रीज करने के लिए मैंने कौन सा की दबाया है अभी? F4. F4, करेक्ट। F4 इज द शॉर्टकट की टू फ्रीज एनी सेल। तो ये हमने फ्रीज कर दिया, जो डॉलर साइन आ रहा है इसका मतलब ये फ्रीज हो गया है। इवन आई वांट टू फ्रीज दिस लुकअप वैल्यू B22 टू G30, ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि ये पूरा टेबल का रेफरेंस है, इट विल रिमेन सेम, ठीक है, वेक्टर, बट दिस विल चेंज, सो आई विल नॉट फ्रीज इट बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज। C से D, D से E से F ऐसे जाना है आपको, ठीक है। अभी आप जादू देखिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। C22 टू C30 था, 30. ठीक है। Now what I will do is I will simply drag this and what do you see? You see everything in one go. एक ही बार में काम हो गया। Are you feeling level up? You can write down level up if you are finding it useful. सब लोग चैट बॉक्स में लिख दें लेवल अप अगर आपका लेवल ऊपर हो गया ये क्लास अटेंड करने के बाद। If you are finding elevated or increase in knowledge, you can write down level up in the chat box. Getting it? Only one person feels. Two. What about others? ठीक है, तो ये क्या है? हाँ, I want more people to answer. कितना सिंपल है, कितना सिंपल हो गया काम हमारा, कितना इजीली हम क्वेरी कर पा रहे हैं। बट ये जब तक इजी नहीं होगा जब तक आप क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिस। You have to practice. What I am doing is I am just giving you what I know. And why I know all this? Because I have practiced all these things 100 times so that I can teach without any error, without any hesitation, without any what you can say halt. बिना रुके मैं आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें बताता जाता हूँ। वो कैसे बता पाता हूँ? क्योंकि मुझे ये सब आता है। और कैसे आया? सीखा है। I did not take any coaching. I did not join any classes. It was because of my interest in learning this amazing software Excel that I have watched the videos, I have read the books, I have practiced myself by creating some data source, and that is how I've learned Excel. तो आपको वो सब नहीं करना है, आपको तो बस एक क्लास ज्वाइन करनी है जो आपने कर रखी है और उसी को अटेंड करके आप सीख सकते हो। लेकिन आप जब तक इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा until unless you try it yourself. If you believe that by joining a course or attending a class for 1 hour you will learn everything, it is a myth. मतलब ये गलत होगा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। आपको समझ में आएगा लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो सब भूल जाएंगे। So again and again I'm repeating that you practice everything. Today हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं 1 घंटे में। We started with wait, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? Let me just recall. So what we started with match only today. Yes. Yes. So we started with match. Match tells you the relative position of a number in the data series. Okay. Then after match we did some examples of these numbers. Then we do lookup. So only we did 2 things today. But apart from that, I explained you what lookup is actually doing with the help of this illustration. और उसके साथ हमने एक क्वेरी शीट बनाई जहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन भी सीखा कैसे बनाते हैं और ड्रॉप डाउन के साथ में ये सारी वैल्यूज कैसे चेंज होती है ये भी हमने देखा। और उसके लिए एक ही बार हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था लुकअप का। उसके साथ मैंने आपको फ्रीज सिखाया। फ्रीज के बाद मैंने आपको बताया कि जो चीज आपको फ्रीज नहीं करनी है उसको आप अनफ्रीज रखिए, जैसे कि ये C2 to C30। When you come to this, so you will say D2 to D30। यहाँ पे आपको E मिल जाएगा, यहाँ F मिल जाएगा, G मिल जाएगा। So this you can use at your work। ये आप जो चीजें सीखते हैं यहाँ पर क्लास में वो आप प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। That is the beauty of this software Excel।
जो भी डेटा के साथ काम करता है उस डेटा को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। Tomorrow what we will do is we will do H lookup, we will do V lookup, and we will do index and match, and we are going to do X lookup also. So tomorrow the lookup series will end. Okay, so don't miss tomorrow's class because it is going to be very important. Okay, so tomorrow you have to revise everything that we have done today and come tomorrow for the class. Okay, now if anyone has any question you can ask.